Hello. Hello. Thank you very much. Years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Welcome to Jan Gan Man. Thank you very much. और बड़ा माहौल सा बांध रखा है आपने. कोशिश कर रहा हूँ. Firstly, I have to say thank you so much for doing this, Ranveer. And I also want to kind of put it out there up top. is क्योंकि मैं पिछले कुछ 15+ सालों से टीवी में काम कर रहा हूँ behind the camera. But it's been unfortunate for me that I don't think we've ever worked together. But still, you agreed to do this, to be a part of this. I think we've met once socially for like 5 minutes, which was also many months back. And I remember I called you and you instantly kind of went with the thought. अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करना चाहिए ना साहब. वही सोच है हम सबकी. That's the reason I wanted to work with you. I have to say also another compliment coming your way is that during the pandemic, while everybody was making what is that coffee? Dalgona coffee and bread and all of that. It was so nice to see a chef who was surrendering to the art of poetry and storytelling also in the pandemic, apart from, of course, the cooking that you were doing. And I think that's where I found your poetry for the first time. I am not sure if you were doing this before also, pehle kar rahe the ki nahi, but I think that kind of helped. Yeah. That was really nice to see somebody from the creative field doing something else also and kind of appealing to another art form. So tell me a bit about that. नहीं, मैंने लिखना और पेंटिंग करना खाना बनाने से पहले शुरू कर दिया था. मैंने अपनी पहली प्रॉपर कविता लिखी थी 6th में. वाओ. क्लास 6th में. कुछ 10 साल पहले. हाँ हम 5-1 साल बस पहले. अभी. हाँ. और तो मुझे माय फादर उनको नेतागिरी का शौक था, तो वो भाषण बहुत अच्छे लिखते थे. तो उनकी डायरी पे वो छोटी छोटी कविताएं लिख के रखते थे, कहीं भाषण में यूज करनी है, कहीं करनी. तो मैं और किसी को नहीं देते थे, मैं छुप छुप के पढ़ता था. और राहत इंदौरी साहब के बहुत बड़े फैन थे वो. तो वो कभी उनके पढ़ लिए, कुछ उनके जुमले पढ़ लिए, तो धीरे धीरे हाशिया मिलाने का एक अंदाजा हो गया. हाँ जी. है ना. तो वो आई थिंक दैट माय डैड्स डैबलिंग विद पॉलिटिक्स इज what inspired my poetry. Wow, nice, super. Also in terms of the endeavor that we have kind of taken up on this, on Jan Gan Man, is to through storytelling, is to kind of celebrate and also make the general public aware of our forgotten heroes. I think we forget that a lot, to kind of trace back where we came from. इतना funny है और इतना strange है कि हम गांधी जयंती के बारे में सिर्फ गांधी जयंती पे ही बात करते हैं, गांधी जी के बारे में सिर्फ उसी दिन बात करते हैं. फनीएस्ट थिंग इज कि हमें वाइन शॉप वाला मैसेज करके बताता है कि ड्राई डे है, आप प्लीज अपना अल्कोहल स्टॉक कर लो. Now that is such a paradox. You're celebrating Gandhi Jayanti and a wine shop guy is messaging you saying this. What do you feel about how we feel as a nation about patriotism, about India and about just celebrating our heroes? बहुत मजे की बात बोली आपने. अटक गई मेरी खोपड़ी में कि अनफॉर्चुनेटली गांधी जयंती हमको वाइन शॉप वाला याद दिलाता. बट एक्चुअली क्या है, मुझे ये लगता है कि जो हमारी वाली जनरेशन, वो फिर भी शायद लास्ट जनरेशन है जिसको फोर्स किया गया आज़ादी की कहानियाँ पढ़ने के लिए. है ना. अगली जनरेशन जो होगी उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस और उनका सिलेबस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको बेचारों को वो भी नहीं होगा. The reference points of independence, the reference points of the freedom struggle are probably going to be different. And I think progressiveness is good, but alienating yourself from where you come from and from humility and humble beginnings is not good.
है ना? Lastly, I think again when we spoke on the phone last week and we said that ये मैं करना चाहता हूँ, that's the idea. हमने अपने सारे freedom fighters and warriors and history को अपने से बहुत दूर रखा है ना हमेशा, because we always put everybody on a pedestal, right? We say that what क्या आदमी था, right? क्या काम किया था, क्या आदमी था. But the thing is वो common man था. उन्होंने जो किया वो बहुत great था. वो आदमी तो कॉमन था, वो औरत तो कॉमन थी. And when we say that, we put them so far away from us that we think that's a different person, that's so unachievable. The beauty is that hopefully through these stories and poetries that we're trying to put out, is that people at least go up and research a little on them, or just become aware. किसी को पेडेस्टल पे डाल दो तो कन्वीनियंट है, आपको वहां पहुंचना नहीं पड़ेगा ना. Correct. आपने किसी को दूर Idolize कर कर दिया. दिया तो इजी हो जाएगा ना. फिर नाउ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बी दैट पर्सन. तो इजी हो जाता है. वो लाइफ आसान करने का बहुत सिंपल तरीका है. आइडलाइज करो, Humanize मत करो. ह्यूमनाइज मत करो. Fantastic, superb. So now just extremely excited to hear कि आप कौन सी story आज story, prose, poetry सुनाने वाले हो. So do you want to give us a little insight on what we're going to hear now? Who's it? आज बात करते हैं द वन एंड ओनली नेताजी. एक ही नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सो हमारे घर में बिकॉज मैं ना माय डैड ही वाज इनटू पॉलिटिक्स, तो मम्मी की आदत थी कि अच्छा सुनो नेताजी, यू नो हर चीज में जैसे course, हाँ. हाँ बुलाते हैं. तो मम्मी तो पापा बड़े अपसेट हो गए थे. नेताजी सिर्फ एक थे, अरे वाह. नेताजी मत बुलाओ मेरे को. तो हमारे घर में यू नो देयर वाज ऑलवेज दिस रेवरेंस फॉर नेताजी. तो मैंने कहा थोड़ी बात करेंगे उनकी, और बाद में अगर बंधा के कुछ पोएट्री हो जाए तो पोएट्री हो जाएगी. शुरू करें? बिल्कुल. चलिए. यस. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि भाई हमको जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती. करेक्ट. है ना. अगर आप नेताजी को देख लें तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे. उनको आज़ादी, गरीबी, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था. राइट. He could have easily insulated himself from those feelings. But the reason it made a difference to the country was it made a difference to him. अगर आप इफेक्ट नहीं होगे, अगर आप अपने आप को, if you don't allow yourself to get hurt, if you're not vulnerable, you will not be inspired. Well said. Absolutely. To be inspired, you got to be touched and moved. To be touched and moved, you got to let yourself be affected. You know, जब अकाल पड़ा और उसका जो इम्पैक्ट आया नेताजी की लाइफ पे, और जो झंझोर के रख दिया उनको, और जब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे देश में अगर एक तरफ लोग जो है वो दावतें तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, तो कुछ गलत है. You know, and it's easy not to get affected and move on with your life. I think that's something that I take back from his formative years. And he didn't just stop at feeling, he acted on Absolutely. it, right? I mean, I think वो एक हम लोग फिल्म मेकिंग में जैसे बोलते हैं ना, that thoughts are results of emotions and actions are results of thoughts. You know, so if you don't feel, you won't be able to think, you won't be able to act. तो वो तो एक, but I think to be able to open yourself to get hurt is a big lesson for all of us. And if that lesson you get from Netaji, why not? What better? है ना? बिल्कुल. तो उस पे भी कुछ लिखा था शायद मैंने. ये लिखा था कि भाई अपनी जरूरत हो तो सभी काम करते हैं. दूसरों की जरूरतों में लोग कहाँ मरते हैं. अलग होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, दूसरों के दुखों में फूट फूट के रोना पड़ता है. I think that sums up what he felt. Yeah. पोजीशन ऑफ प्रिविलेज तो ठीक है. यू नो, पोजीशन ऑफ प्रिविलेज के बाद अगर आप गिफ्टेड हैं, यू नो, अगर आप गिफ्टेड स्कॉलर हैं, अगर आप इतने गिफ्टेड हैं कि आप कैम्ब्रिज जाके एक 4 साल का सिविल सर्विसेज का कोर्स 7 महीने में खत्म कर देते हैं. Oh, is it? तो ये जग जाहिर है कि आप सिर्फ प्रिविलेज्ड पोजीशन में नहीं है, बल्कि एक जीनियस भी है. बिल्कुल. राइट. नाउ दैट इज अ डबल वैमी. He had everything going for him. सब कुछ तो है ना यार. बिल्कुल सब कुछ है. हाँ. और उसके बाद आई थिंक
that lesson is how do you be, क्या शब्द होगा unreasonable rebel. अब हो गया, चलिए पढ़ लिख के आ गए तो आज की डेट में भी क्या होता है, हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, माँ बाप जो है सबसे पहले जैसे ही आपको नौकरी मिलती है EMI की घंटी आपके गले में बांध देते हैं, है ना? यही होता है, आज के भी होता है। करेक्ट। कि भैया देखो अच्छी खासी नौकरी लग गई है, पहले एक घर ले लो, बिल्कुल। फिर पहली EMI की घंटी बंदी, फिर बोलते वो देखो बगल वाला भी खाली है, फिर दूसरी EMI की घंटी बंदी, फिर गाड़ी, तो ऐसे करके हम EMI की घंटियां बांध रहे थे। बाय द टाइम वी आर 40 वे लाइक दिस, राइट? एंड दैट इज जस्ट हाउ इट इज, राइट? नाउ अगेन टू ब्रेक दैट शैकल एंड से कि यार मैं पढ़ के तो आ गया यहाँ से वहां से, लेकिन ये इज्जत की नौकरी ये वो मुझे समझ नहीं आती। जब मेरी इज्जत नहीं है अपने देश में, तो मैं इज्जत की नौकरी कैसे कर सकता हूँ? योर डेफिनेशन ऑफ इज्जत की नौकरी इज रॉन्ग व्हेन आई डोंट हैव रिस्पेक्ट इन माय ओन कंट्री. Wow. To think like that, Yeah. you know, I think that's again such a disruptive thinking. हम लोग बोलते हैं ना यार disruptive आज ये, disruptive वो, disruptive ये एजेंसी खोलो, disruptive agency. This was truly disruptive at that point in time, you know. And then so it's ये है ना कि शिक्षा शोहरत है ना, शिक्षा शोहरत का इज्जत की नौकरी का रास्ता है? इतना पढ़ लिख के आजादी के चक्करों में कौन फंसता है ना? फिर यह है कि भाई आज भी हमें पैसे, इज्जत, शोहरत की इस छोटी सी दुनिया में नाचता देखकर वो बड़ा सा सुभाष कहीं पर तो खड़ा हंसता है. Wow. And we're still there. Yeah. हम सबने आज भी EMI घंटियां लटकाई हुई हैं. Correct. And then to take it forward to say कि यार मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई सही क्या है गलत क्या है. मुझे मतलब ये है कि this is what I want. I want the country to be free. अब उसके लिए अगर मेरे को मेरे दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े तो वो भी सही. To take the power of an idea to the world and have the world rally around that power. नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा था हिटलर जैसे को बोलता कि यार ठीक है भाई, वेरी गुड, गुड लक. उसने बोला नहीं यार, this is a cause. Let's have an Indian independence office in Berlin. Yeah. Another interesting part जो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये कि जब ये मिलने गए हिटलर से, हाँ जी, तो नेताजी बैठे हुए थे, बड़ा वेट कराया, हिटलर नहीं आया. तो बैठे हुए तो हिटलर आया और नेताजी उठे. हिटलर ने हाथ बढ़ाया, नेताजी ने बोला नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है, और बैठ गए. ओके. फिर थोड़ी देर बाद फिर हिटलर आया, नेताजी उठे, हिटलर ने हाथ बढ़ाया, नेताजी बोलते नहीं, मुझे हिटलर से मिलना. 3-4 बार हुआ. एंड में फिर हिटलर आया, खड़ा हुआ, नेताजी ने बोला यूर हिटलर. तो हिटलर बोलता भाई आपको कैसे पता चला? तो नेताजी कहते हैं, अ मैन इन अ पोजीशन ऑफ पावर विल नेवर ऑफर हिज हैंड फॉर हैंडशेक फर्स्ट. वाओ. तो मतलब जहां तो जो डबल्स आए थे पहले उन्होंने पहचान ली इंस्टेंटली. और where the world was having trouble finding the real Hitler, he did it in like 3 handshakes. Wow. That's the genius of the man. That's the genius, like you said, right? That's and what understanding made him. of human behavior. Na? Wow. It's such a visual image, no, of this happening. That's the power of storytelling, isn't it? I mean, you just made it come alive. As I felt as if I'm in that room. Yeah. So yeah. पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था जी, या सुन रहा था शायद किसी पॉडकास्ट पे कि जब प्रीमियर एटली से किसी ने पूछा कि आप हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहे हैं, क्या कारण है उसका, तो उन्होंने खुद बोला था, कहते वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज द इंडियन नेशनल आर्मी. और उस बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि जितना मर्जी आप कह लीजिए, जब चोट लगती है दर्द होता है, और जब कन्विक्शन से थप्पड़ मारा जाता है ना तो दर्द और ज़्यादा. बिल्कुल. तो वो जो कन्विक्शन वाला थप्पड़ है ना, वो गूंजा, और हम उस
कन्विक्शन के थप्पड़ का इनफ क्रेडिट नेताजी को नहीं देते एज अ कंट्री, एंड दैट्स नॉट राइट। ऑलवेज फील दैट कंस्ट्रक्टिव कॉज के साथ अटैच करना is where the trick is. Correct. He attached the aggression to a constructive cause. What better cause than saying, you give me blood, I'll give you freedom. तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो ये लिखा है मैंने। हाँ जी। कि तुम मुझे, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा मैं पढ़ते हुए, Please. एडवांस में बोल रहा हूँ। जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के सिपाही की उपाधि दूंगा। जो दफन करने आए थे अंग्रेज ये तो भूल गए कि बीज थे वो सिपा सलार, देखो कैसे फैल फूल गए। लेके आजादी अपने हाथों से तुम्हें दे दी है, कल की पुश्तें तुमसे ये ना कहे कि आजादी लेके तुम नेताजी को भूल गए। अंडर सेलिब्रेट करते हैं यार हम बंदे को, वी अंडर सेलिब्रेट। एक 23 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। हाँ जी। तो वो कॉलेज स्ट्रीट में एक तेलेर भाजा की दुकान है। तो आज भी वो 23 जनवरी को पूरा दिन फ्री तेले भाजा खिलाता है, नेताजी तेले भाजा। क्या बात है। आज भी ब्यूटीफुल, यू नो। और ऐसी चीजें करते रहना चाहिए। बिल्कुल। उनको हमारी जरूरत नहीं है you know, हमको उनकी जरूरत है। We need to keep him alive. Yeah. We need to keep him alive every day. We need to keep his unreasonability alive. We need to keep the rebel in him alive. We need to keep his vulnerability alive. We need him more. They don't need us. We need them more. That's the amazing thing about him, right? He's inspiring us even now. And that the legacy, like they say, is going to live on forever. Timeless. And hopefully through initiatives like this, we can kind of keep doing our little as creative artists in our little capacity to kind of keep shining the little light on his story. Absolutely. Though the light that's shining back on us is blinding because of what he's done. But no, the least we can do for ourselves and the coming generations is to keep this story alive. Thank you for doing this. Thank you for doing this, Ranveer. I know you have a very, very busy schedule and you took time out and put so much effort to kind of do this for me, for us, and for Netaji primarily. What did you think? How did you feel putting this together? नहीं, बहुत अच्छा था। आई थिंक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है ना। एक सुपरफिशियल बाहरी लिफाफा चेंज हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग उसको बोल देते हैं इंस्पायरिंग पॉडकास्ट्स। पुराने टाइम में हम लोग की इतनी किताबों के चैप्टर होते थे। When you read about great people, when you listen about them, when you read books about them, what you realize is, one, that you have the power to be great. Two, you have only yourself to blame if you couldn't get there. Wow. है ना? तो आई थिंक ये जो आपने स्पेस क्रिएट किया है ना, अगर हम सब सिर्फ ये दो चीज़ें लेके चले जाएं, एक, हम बहुत पावरफुल हैं, और दूसरा, अगर हम पावरलेस महसूस कर रहे हैं तो गलती सिर्फ हमारी है। बिल्कुल। तो और जब आप उस स्टैचर के लोगों की बातें करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, तो कम से कम इतना टेक अवे तो होना चाहिए यार। बिल्कुल। May you continue to find more purpose and may you continue to inspire all of us with everything that you've done and you keep doing. Just last words before leaving is, in this room, and because currently we are in this space, we are shooting this, and I can almost sense this energy, which I'm not sure if it will translate on camera, but is there a certain Netaji energy that you ever felt in your life, in terms of how you maybe took a decision and you just channelized that same energy? देखिए, मैं एक जो बहुत ज़्यादा वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक जो चीज़ मैं हमेशा अपने आप को अलाउ करता हूँ,
वो ये कि मैं I allow myself to be hurt. That's something that I've learned. I allow myself to cry. I allow myself to be affected. I allow myself to feel things, and to the point where sometimes you feel, अरे इससे ज़्यादा नहीं, otherwise you lose your essence. You know, और Is it difficult? it is difficult क्योंकि ज़रूरत नहीं होती ना. You know, ज़रूरत नहीं होती ना. वो चीज़ जो है मैंने उनसे सीखी है कि जब तक यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक बाहर फ़र्क नहीं डाल पाऊंगा. I will not be able to make an impact if I don't get impacted. वो चीज़ अगर है एक जो मेरा लाइफ लेसन है नेताजी की लाइफ से, जो मैं कोशिश करता हूँ कि लेके चलूँ, फ़र्क पड़ना चाहिए. Fantastic. Okay, superb. Thank you so much. Thank you so much, Ranveer, for coming on Jan Gan Man. Thank you. Thanks a lot.